Hello, again welcome student of Standard 7 English Medium. This is the second part of the Unit 6 exploring patriotism, activity number 5 to 10, right? So let us take activity number 5. In activity number 5, how well do you know Mahatma Gandhi? Write 10 interesting facts about the Gandhiji's life. You can use your school library or internet for collecting information. Already I have write down some sentence from school library, books, internet. It's a one kind of your essay. Maybe possible it is important, right? ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है. So just read it carefully, take your notebook, ball pen and write down it, okay? So activity number 5. Mahatma Gandhi born in India, Porbandar, Gujarat in 2nd October 1869. His birth anniversary is celebrated as Gandhi Jayanti. This day is whole world celebrated as International Day of Non-Violence. Mahatma Gandhi contributed tirelessly and selflessly in freedom of India. Gandhiji studied in London and became barrister, means lawyer. Before going to London, he took a vow that he will never touch wine, woman and meat. Look here, one mistake. एनी वी आर वाई लिखा है ना, वो वाई निकाल देने का है. क्या होता है? नेवर ही होता है. नेवर, एनी वी आर. नेवर टच वाइन, वुमन एंड मीट. बिटवीन 1893 to 1914 he lived in South Africa where he was practicing law. Gandhiji's wife name was Kasturba. In 1921, Gandhiji discarded his clothes and wore only loin. खादी का जो धोतिया होता है वो cloth. Poor men of Champaran called him Mahatma. There are so many others. He was shot dead by Nathuram Godse in 1947. Maybe we can join it, okay? These are the only 10 sentences or more than 10 we wrote it. Now, activity number 6. Now, activity number 6, filling the blanks. Though his dash level was low, he was very wise. Literacy, ये किसके बारे में है? अब्दुल्ला सेठ के बारे में लिखा है. Though his literacy level was low, he was very wise. Second, patriots like Sardar and Gandhiji are not born एवरी डे. सरदार और गांधी जी जैसे देशभक्त हर रोज़ पैदा नहीं होते. ऑन द सेकंड डे ही वेंट गोका पास्ट टेंस टू सी द कोर्ट ऑफ डरबन. 4 नंबर, वी मस्ट नेवर टॉलरेट एनी जस्टिस बट वी मस्ट ऑलवेज शो टॉलरेंस for others' beliefs.
to tolerate. This is the activity 6. Now activity number 7. What is there in activity number 7? It is a puzzle game, right? Just like game. Here are given some words that you have to, already I have written the answer, but you just read carefully and write down in your notebook, okay? First, a place for sheep to dock, where the sheep led its platform is called quay. Second, the opposite of the opposite of polite, rude. पोलाइट होता है हर वक्त चीयरफुल रहता है, फट से जवाब देता है, सब हेल्प करता है, कोऑपरेट करता है. रूड जो होता है, रूड पीपल, वो घमंडी होता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, गुस्से में बोलता है, कम बोलता है, किसको हेल्प नहीं करता. रूड. बाय इज टू बॉट एज अ थिंग इज टू थॉट, है ना. बाय का बोट हुआ पास्ट टेंस, तो थिंक का थॉट हुआ ना. I have a sweet tooth. I am very fond of sweet. Five. To begin. What is the meaning of the begin? Begin का मतलब क्या होता है? तो to start होता है ना. To start. This is the end of activity 7. Activity number 8. Make sentence of your own using the following words. First as an adverb and then the adjectives. Use of adverb and adjectives. Example है दिया है. एग्जाम्पल है अर्ली. एडवर्ब में कैसे यूज करेंगे? वी मस्ट मेक इट अ हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. और एडजेक्टिव में क्या आएगा? द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म. वैसे इमेंस. एडवर्ब में क्या होता है? दे एंजॉयड देमसेल्व्स इमेंस. इमेंस का मतलब क्या? लॉट ऑफ, अपार, बहुत, खूब मज़े से. तो अपने आप को उन्होंने बहुत मज़े से एंजॉय किया. दूसरा एडजेक्टिव कैसे बनेगा? द सन हैव इमेंस हीट एंड एनर्जी. सन में अपार गर्मी और शक्ति है. Now here, second, third, fourth and fifth. This is your homework. You have to write down yourselves. Still I will give you a hint and the articles which are given in digest I will give you, okay? So that you have to write down. Here are sharp. Sharp दोनों में just same ही आता है. As an adverb, please be here at 11 o'clock sharp. Complete 11 बजे आ जाना, ऐसा. और एडजेक्टिव में क्या होगा? To keep a sharp look out of the strangers. अजनबियों पे बहुत ध्यान रखो, शार्प नज़र रखो, ऐसा. प्राउड. दोनों में देखो एडवर्ब और एडजेक्टिव्स में सेंटेंस में फ़र्क होता है. द स्कूल डिड
us proud at the cemetery dinner. This is the adverb. Now we have to use adjective. Saloni was too proud to admit that she could be wrong. For number, fond. एडवर्ब में कैसे बनेगा, सेंटेंस में कैसे यूज होगा? मदर रफल्ड द चाइल्ड्स हेयर फॉन्डली. और एडजेक्टिव्स में कैसे आएगा? आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ माई स्टे इन लंडन. शौक, शौक से, प्यार से वो याद करते हैं अपनी मेमोरी को, बहुत चाव से याद करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना. हार्ड. एज एन एडवर्ब, शिखर धवन हिट द बॉल हार्ड. एज एन एडजेक्टिव, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक. सो दिस इज द एंड ऑफ एक्टिविटी नंबर 9. Now we will take, activity number 8. Now we will take activity number 9. In activity number 9, there is an interview a social worker in your locality to find out about the problems faced by the people living in your area. Prepare a questionnaire for the interview. Start with the following question and then add a few of your own. मतलब ये हुआ कि सामाजिक कार्यकर्ता आपके आजू बाजू आए हैं, आपकी शैली में आए हैं, तो या तो कोई दूसरे ऐसी स्लम झुपड़पट्टी जैसी जगह पे वहाँ आप जाके उसका इंटरव्यू ले सकते हो. तो इंटरव्यू में यू हैव टू आस्क 10 क्वेश्चन. फर्स्ट, मे आई नो योर गुड नेम. सर हो तो आदमी हो तो सर, और औरत हो तो मैम. तो दूसरे सवाल भी ऐसे आपको बनाकर लिखने, दो लिखो, बहुत है. Since how long you are working as a social worker? दूसरा, what was the reason to choose this field? मतलब ये हुआ कि आप इस कार्यक्षेत्र में कब से हैं और आपने ये कार्यक्षेत्र क्यों चुना. How long have you been working in this field? आप कितने समय से इस कार्य में कार्यरत है. तो उसमें दूसरा 2 ऐसे लिख सकते हैं. वाई यू डिसाइडेड टू गो इन दिस फील्ड एंड फ्रॉम वेयर यू आर यू कमिंग. और आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ रहते हो. फिर आता है फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस लोकेलिटी. आप इस लोकेलिटी में कब से. तो उसका ऐसा भी दूसरा बन सकता है, व्हाट इज़ द 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर पीपल. गरीब लोगों का 3 सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है मैम, आप कुछ जाना क्या. व्हाट आर द सॉल्यूशन, और उसका इलाज क्या है, ये आप हमें बताइए. इस तरह के सवाल आप जैसे पत्रकार हो पूछ सकते हो, प्रेस रिपोर्टर हो तो पूछ सकते हो, बाद में भी आंसर देंगे आपको. बराबर. दिस इज द एंड ऑफ एक्टिविटी 9. नाउ वी आर टेकिंग एक्टिविटी नंबर 10. एक्चुअली एक्टिविटी 10, व्हाट इज देयर? Write about the experience you had when you visited a place you had never been before. यानी आपको ऐसी जगह की मुलाकात लेनी है जहां आप पहले कभी गए नहीं हो. ऐसी एक जगह है जहां मैं गया था
जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार गया था, वो मैंने लिखा है। आप भी इस तरह से दूसरी जगह पे लिख सकते हो, बराबर। जैसे चौकीदानी है, फिर बहुत से ऐसे गिरा धोध है, गए हो नहीं गए हो, ऐसे जो भी पिकनिक प्लेस है वन डे का, उसके बारे में लिख सकते हो। तो मैंने इसमें ये लिखा है कि वी विजिटेड अ फार ट्राइबल एरिया कॉल्ड मोतीझरा। क्या नाम था उसका? मोतीझरा। I was deep in the jungle of डांग डिस्ट्रिक्ट। मैं डांग डिस्ट्रिक्ट के जंगल में बहुत ही अंदर गया था। I never visited this place before। इस जगह पर मैंने पहले कभी भी पाँव नहीं रखा था, मैंने उसकी मुलाकात नहीं ली थी। It is one big rock 40 feet high। वो जगह क्या है? एक 40 फुट ऊंचा पत्थर है, उसमें कुदरती thousands of छेद है, छोटे छोटे छेद है। And water comes out from thousands of holes of rock। और पानी वो छोटे छोटे होल में से बाहर आता है, और वो जल्दी नहीं गिरता है, बूंदे की शक्ल में गिरता है। तो जैसे मोती लटक रहे हो ऐसा लगता है, फिर गिर जाता है। It was looked like a pearls are dropping from rock। वो कैसा लगता है? जैसे पूरे पत्थर पे मोती लटका रहे हैं और वो थोड़ी थोड़ी देर में गिरते रहते हैं। We enjoy lots। It was magnificent place, right? तो ये एक्टिविटी नंबर 10 थी। अभी आप एक बात ध्यान में रखो, इसमें जो जो एक्सरसाइज है सब आपको 5 टाइम घर पे लिखना है, होमवर्क में लिखना है, और बताना भी जब स्कूल शुरू होगी। ओके, देन बाय, सी यू।